میں آپ کو فقط دو تین چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کی بات نہ کریں، یہ فیشنیبل نہیں ہے، لیکن دراصل جو چیزیں ہوئیں اس کے اثرات جو ہیں ان سے ہمیں نپٹنا پڑ رہا ہے. اور کافی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر کچھ پالیسیز چلائی گئیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو وہ مضبوطی یا وہ پائیداری نہ مل سکی، تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ معیشت کو ایسے راستے پہ ڈالا جائے کہ جس میں ایک پائیدار اور مستحکم معیشت ابھرے، اور ہمارے جو لوگ ہیں خصوصی طور پر جو نوجوان جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں، اور جو لوگوں کو امیدیں ہیں اس حکومت سے وہ پوری ہوں. دیکھیں، جب یہ حکومت آئی تو ایک بڑی بحرانی کیفیت تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا، اور کوئی بھی اپنی مرضی سے IMF کے پاس نہیں جاتا، لیکن جب ایک اقتصادی بحران ہو تو مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ایک بحران کا. دوسری جانب جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی، یعنی جو بیرونی خسارہ تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا $20 ارب تھا، اور اتنے قرضے لیے گئے تھے کہ آنے والے 2 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے 2 سال تھے اس میں 5000 ارب روپے واپس کرنے تھے قرضوں کی حیثیت میں. تو دوسری جانب یہ دیکھیں کہ جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستا رکھا گیا، اور ایک پالیسی چلائی گئی کہ ڈالر کو سستا رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو 2 بڑے اثرات ہوئے وہ یہ کہ ایک تو ملک کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈالر کما سکتے ہیں، وہ پچھلے 5 سال جو گزرے اس میں اس کی بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ 0% سے بھی کم تھی. یعنی اگر 5 سال گزر جائیں حکومت کے اور ایکسپورٹس جو ہے اس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم ہو تو کس طرح آپ خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ ڈالر کو سستا رکھنے کا جو اثر ہوا کہ سارے ملک کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، کیونکہ ہر چیز لوگوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی. تو باہر کے ممالک کے لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے لوگوں نے ہر چیز ٹوتھ پیسٹ سے لے کر انگور اور اس کے علاوہ الیکٹرک چیزیں اور تقریباً ہر چیز جو ہے باہر سے خریدنی شروع کی، اور ہماری جو اپنی انڈسٹری تھی اس کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کو بڑھنے میں دقت ہوئی. اور اگر ہم 2-4 بڑے پروجیکٹس جو کہ چائنا کی مدد سے ہوئے ان کو ہٹا دیں تو کوئی ایسی خاص معیشت کے اندر تیزی نہیں آئی. اور آخر کار جس چیز نے مجبور کر دیا حکومت کو IMF کے پاس جانے کے لیے کہ ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور جو پچھلے 1.5 سال پونے 2 سال گزرے پچھلی حکومت کے اس میں ڈالرز جو ہیں وہ آدھے ہو گئے، 18 ارب سے 9 ارب رہ گئے ڈالر. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے بہت سخت فیصلے کیے گئے، بہت مشکل فیصلے کیے گئے. اول یہ کہ ہم نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایسی پالیسی بنانی ہے جس میں ہمارے بزنس مین کو ایکسپورٹس کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اس انداز میں کہ جو مضبوط اور پائیدار بنیاد پہ ہو، تو پھر انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی آگے آنا ہوگا، اور حکومت کا کام اچھی پالیسیز بنا کر مراعات دے کر اچھا ماحول پیدا کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہے. تو کیا فیصلے کیے گئے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر تمام ٹیکسز ختم کیے اور ریفنڈ کے نظام کو بہتر کیا، یعنی آپ کے پیسے جو آپ کو واپس ملنے چاہیے وہ تیز رفتاری سے ملے، اور کئی طرح کے ہزاروں را مٹیریل جو خام مال ہے ان کی جو
ऊपर जो इंपोर्ट की ड्यूटीज थी उनको सिफर किया और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के अंदर सब्सिडी देने के लिए तय किया। तो दूसरी जानिब हमने हुकूमती इखराजात को कंट्रोल किया और आपने देखा कि इन चीजों की वजह से जो कोरोना वायरस से पहले हमारी जो परफॉर्मेंस रही उसको सारी दुनिया ने सराहा, IMF के बोर्ड ने सराहा और पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा पैकेज दिया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो आगे बढ़े, जो चीजें रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, उनको उन्होंने खत्म करके यहां पर नए प्रोजेक्ट शुरू किए। बाहर की दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं वो यहां पे आगे आए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की तेज तरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया। और सबसे बढ़कर ये कि हमने इन चीजों की वजह से एक जानिब अपने अखराजात कम किए और दूसरी जानिब टैक्सेस जो है उसमें कलेक्शन में इजाफा किया और 17% से ज्यादा इजाफा था कोरोना वायरस से पहले फरवरी मार्च तक। उसका असर ये हुआ कि इन पॉलिसीज की वजह से, जैसे गवर्नर साहब ने कहा, एक तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा बाहर का बैरूनी जो हमारा खसारा था उसको तारीख की सबसे बड़ी सतह 20 अरब से 3 अरब तक लाया गया और दूसरी जानिब जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारी जो आमदनी है टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू और हमारे जो इखराजात हैं उनमें फर्क। तो एक जानिब हमने 17% इजाफा किया टैक्सेस में, दूसरी जानिब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो जिसका टारगेट 1.1 ट्रिलियन यानी 11,000 अरब था उसको हमने 15,000 अरब तक पहुंचाया। 1,100 अरब का टारगेट था और 1,500 अरब हमने कलेक्ट किए। तो इनकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई 10 साल बाद पहली बार जो प्राइमरी हमारा डेफिसिट था वो सरप्लस में तब्दील हो गया और फरवरी मार्च के कोरोना वायरस से पहले ये प्राइमरी सरप्लस था यानी पॉजिटिव था, यानी हमारी जो आमदनी थी उससे हमने इखराजात को कम रखा और इसकी वजह यह है कि फिर हमें बाहर से कर्ज लेने में कोई जरूरत न हो अपने इखराजात के लिए। अब जब कोरोना वायरस आया तो कुदरती बात है हमें उस वक्त अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लानी पड़ी। जब कोरोना वायरस की एक मुसीबत हमारे सर पे हो और हमारे बिजनेसमैन और हमारे आम शहरी उससे निपट रहे हों, उस वक्त हमें टैक्स कलेक्ट करना जो है सबसे अवलीन तरजीह हमने नहीं बनाई और उसकी वजह से 500 से 600 अरब रुपए हमने छोड़ दिए टैक्सेस में जो हमारी मंसूबाबंदी के मुताबिक थे और इसी तरह से हमने 500 से 600 अरब की इजाफी जो है एक्सपेंडिचर यानी इखराजात किए अपने लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए। और अगर हमने कोई भी कर्ज लिया तो फकत ये 1 ट्रिलियन जो फकत कोरोना वायरस के इखराजात से निपटने के लिए लिया। अब आप देखें कि कोरोना वायरस के दौरान हमने क्या क्या फैसले किए आप लोगों के हक में। हमने कहा कि अगर कोई भी प्रिंसिपल ड्यू हो बैंक से तो वो पोस्टपोन हो, डेफर हो, ताकि आपको कर्ज नहीं देना पड़े। हमने कहा अगर वर्कर्स के लिए पेरोल एक्सपेंसेस के लिए, ताकि आप वर्कर्स को नहीं निकालें, उसके लिए आपको लोन चाहिए तो वो सस्ते दामों पे लोन के बंदोबस्त किए गए। हमने कहा कि कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर बिजली का बिल देने में दिक्कत है तो हम देंगे बिजली का बिल और हुकूमत ने 3-3 महीने के बिल अपनी जेब से दिए तमाम छोटे लाखों कमर्शियल एंटरप्राइजेज को। उसके बाद हमने कहा कि अगर आपको लोन्स चाहिए तो उसमें मराहत की और रेट्स कम किए। जो
पॉलिसी रेट था जिसके ऊपर जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय कर सकती है, उसमें जबरदस्त कमी की गई, 13.25% से 7% तक किया गया। और इसके अलावा कई और चीजें की गई और खुसूसी तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक तारीखी पैकेज दिया गया। यानी एक तो ये कि उनके जो टैक्स रेट थे वो दूसरे निजाम के तहत लगाए गए जिसमें वो पहले के टैक्सेस के मुकाबले में बहुत कम कर दिए गए। फिर चूंकि यहां पर बहुत डिमांड है कि आम लोगों के लिए घर बनाने को में दिक्कत है, तो हमने कहा कि जो भी सेक्टर इस सेक्टर में आएगा बिजनेस ग्रुप, उसको हम 90% छूट देंगे टैक्सेस में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी छोटे हाउसिंग में अगर आपकी 1000 रुपये आपको टैक्स देना है तो हमने 900 उसमें से आपको छूट दे दी कि आप फकत 10% टैक्स दें। और साथ ही साथ हमने 30 अरब रुपए रखे बजट में कि ये हम लोगों के घर खरीदने के लिए उनको पैसे सरकार देगी, ताकि एक जानिब आपको मोटिवेशन हो, आप आगे बढ़ें कि आपको 90% छूट है टैक्सेस में, दूसरी जानिब डिमांड पैदा की जाए लोगों को हुकूमत की जानिब से पैसे देकर। तो ये सारी चीजें थी और एक तारीखी एक पैकेज दिया गया सब्सिडीज का। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो आपस में बातचीत करें उसमें ये देखें कि किस अंदाज में हमारी जो ये सोच है जिसका महवर पाकिस्तान के आम लोग हैं, उनको इस सोच को कैसे लेकर आगे चला जाए और साथ ही साथ आपको ये कॉन्फिडेंस, एतमाद हो कि कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, कोई हुकूमती जो है पॉलिसी मेकर किसी और की मदद नहीं करेगा जिससे आपको नुकसान हो, और हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे हमें मिल के निपटना है, जैसे इन्फ्लेशन है। अब देखें, जब गंदम की कीमतें बढ़ी तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम जितनी गंदम कंज्यूम करते हैं, जितनी हम तलब करते हैं, तो हमारी जो अपनी प्रोडक्शन थी वो उससे कोई 1.25 से 1.5 मिलियन टन कम हुई, यानी 12 से 15 लाख कम हुई। तो फौरी फैसला किया गया कि गंदम इंपोर्ट की जाए, और अगरचे 1.5 मिलियन टन यानी 15 लाख टन की शॉर्टेज समझी जाती है, तो कोई 2.25 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जानिब तो वो शॉर्टेज भी खत्म हो, और दूसरा ये कि हमारा जो अपना हुकूमती जखीरा है गंदम का, उसमें 10 लाख टन का इजाफा किया जाए, ताकि मार्केट्स को इत्मीनान हो कि ये हुकूमत जो है किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करेगी कि यहां पे गंदम की शॉर्टेज हो। और गंदम की कीमतें कम रखने के लिए जो रिलीज की जा रही है सरकार से, वो सब्सिडी के तौर पे की जा रही है। और आपके शहर में आप देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 1475 के ऊपर रिलीज कर रही है, ताकि लोगों को और मार्केट्स को ये इत्मीनान हो कि हम इस इश्यू से निपटने के लिए किसी चीज को रास्ते में नहीं आने देंगे। तो अब देखें, एक और इश्यू जो है कि कीमतों से निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शायद ही कोई सेक्टर हो जिसमें हुकूमत अपनी जेब से लोगों की मदद नहीं कर रही है। 72% जो बिजली के सार्फिन हैं वो हुकूमत उनको सब्सिडी दे रही है। कोई 90% जो गैस के सार्फिन हैं उनको हुकूमत सब्सिडी दे रही है। जो 100% ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं उनको हुकूमत सब्सिडी दे रही है। 1,60,00,000 लोगों को अभी कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत ने पैसे दिए। कोई
144 अरब रुपए, और हर एक ने देखा कि बिला इम्तियाज दिए गए। पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गांव, हर गली में लोग, खुसूसी तौर पर खवातीन आई और उन्हें पैसे दिए गए, सारी दुनिया के सामने दिए गए। और ये नहीं थी कंसिडरेशन कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। सिर्फ एक शर्त थी कि आप पाकिस्तानी हैं और आप जरूरतमंद। और सारी दुनिया ने सराहा और पाकिस्तान का नाम इससे रोशन हुआ। और अब इसी एहसास प्रोग्राम के तहत हम एक और राउंड करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह, जो आने वाले हफ्तों में होगा। और फिर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हर कोने कस्बे में लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए। इसी तरह से यूटिलिटी स्टोर्स को तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया, और जो भी खाने पीने की चीजें हैं, आटा, चीनी, दाल, शक्कर, घी, ये सब जो हैं वो जो मार्केट के रेट्स हैं उनसे बहुत कम रेट पे दी जा रही है। तो आटा अगर पंजाब की गवर्नमेंट जिस रेट पे दे रही है, जिससे वो बनता है, तो 875 उसकी रेट बनती है। और मार्केट में कई जगह पे पाकिस्तान में ये 1000 रुपए से भी ज्यादा रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में ये 800 रुपए पे दिया जा रहा है। इसी तरह से बाकी चीजें जो हैं, जैसे शक्कर है, अगर मार्केट में उसकी कीमत 90 है तो यहाँ पे जो है 70 पे दी जा रही है। और 4000 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके तहत तकरीबन 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं की जा रही हैं। इसके लिए नए जो हैं बजट्स दिए जा रहे हैं, और हमारा जो गोल है वो फकत ये है कि हम इन दिक्कत वाले हालात में तमाम सरकारी खर्चात को महदूद करते हुए 2 तबकों की मदद करें। एक वो पाकिस्तान के भूले हुए लोग जो हमेशा गुर्बत और मसाइल में घिरे रहे हैं, उनका हाथ थामा जाए, और दूसरा पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो इस मुल्क और इसकी मईशत को आगे लेकर चलेंगे। तो हमारी इंशाल्लाह आपके साथ जो कोऑपरेशन है वो एक इस फलसफे के तहत है कि हम अगर मिल जाएं और सही चीजें करें तो पाकिस्तान के लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी कर सकते हैं। और इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया है। शायद माजी में लीडरशिप की कमी हो, या ये कि लोग अपने मफादात को कौम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरियात हैं, उन पर फोकियत देते रहे। तो इस वक्त एक ऐसा माहौल है कि सिर्फ एक चीज जो है वो मैटर करती है, और वो है पाकिस्तान की पब्लिक की जरूरियात, पाकिस्तान की पब्लिक की ख्वाहिशात और पाकिस्तान की तकदीर को बदलना। तो इंशाअल्लाह हम अगर मिल के काम करें और आपके राह में जो भी रुकावट हो उसको दूर करें, तो कोई ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम पाकिस्तान को वहां पहुंचा दें जहां इसको होना चाहिए। थैंक यू जी। अब मेरे ख्याल में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और जो आपकी सजेशंस हैं वो भी मैं और मेरे साथ मेरे टीम के लोग भी हैं, FBR की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो और हमारा सूबाई हुकूमत के साथ भी राब्ता है। और मेरा जो दफ्तर है आपके लिए वो खुला है हमेशा इस्लामाबाद में, और मैं यहाँ भी हाजिर होने को तैयार हूँ। हुकूमत इंसमाम शुदा इलाकों की बिला ताअत्तुल तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबायली असलाह और पंजाब में तरक्याती उमूर का जायजा। माजी में सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए वसाइल का एक बड़ा हिस्सा चंद इलाकों के